कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 रिलेटेड टू इंक्रीमेंटल एनालिसिस। अपने पास हेडिंग आ जाएगा इंक्रीमेंटल एनालिसिस चैप्टर नंबर 7। जरा लाइन इसमें इंक्रीमेंटल एनालिसिस के हवाले से लिखें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इसमें उसके ऊपर आएंगे। लेकिन पहले जरा लिखें इंक्रीमेंटल एनालिसिस के हेडिंग के अंदर द प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डेटा The process used to identify the financial data that change financial data that change under alternative course of action is called incremental analysis. Under alternative course of action is called incremental analysis. स्टॉक के बाद देखें the following cost concept used in incremental analysis. The following cost concept used in incremental analysis. फर्स्ट हेडिंग डालें relevant cost. फर्स्ट हेडिंग relevant cost. देखिए इस हेडिंग के अंदर in incremental analysis the only factors to be considered in incremental analysis, the only factor to be considered are those cost and revenues that differ across alternative. Full stop. Those factors are called relevant cost.
those factors are called relevant cost. नेक्स्ट इसी हेडिंग में नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखें कॉस्ट एंड रेवेन्यू that do not differ across alternatives can be ignored when trying to choose between alternatives. Next heading, opportunity cost. Often in choosing one course of action, the company must give up the opportunity to benefit from some other course of action. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए इसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल if a machine is used to make one type of product, if a machine is used to make one type of product, the benefit of making another type of product, other type of product with that machine is lost. Another type of product with that machine is lost. Full stop. This lost benefit is referred to
This lost benefit is referred to as opportunity cost. Is referred to as opportunity cost. Next heading, sunk cost. SUNK, sunk cost. Costs that have already been incurred. Costs that have already been incurred. Costs that have already been incurred and will not be changed or avoided by any present or future decisions are referred to as sunk cost. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा पैराग्राफ से. फॉर एग्जाम्पल, the amount you spend in the past to purchase or repair a machine should have no bearing on your decision whether to buy a new machine full stop. After inverted commas में लिख लीजिएगा sunk cost are not relevant cost. नेक्स्ट हेडिंग डालें. Types of incremental analysis. A number of different types of decisions involve incremental analysis. The more common type of decisions are as follows. Number 1, accept an order
at special price, accept an order at special price, number 2, make or buy components part or finished product, component parts or finished product, number 3, sale product, SELL, sale products or process them further, sales product or process them further, number 4, prepare, retain or replace equipment, repair, retain or replace equipment, number 5, eliminate an unprofitable business segment, eliminate an unprofitable business segment or product, चलिए अब इसमें इतनी बातें ये लिखवाई है उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1 बाय 1 जो टाइप्स लिखवाई हैं ये 5 टाइप्स की एक्सरसाइजेस हैं इंक्रीमेंटल एनालिसिस के हवाले से। इंक्रीमेंटल एनालिसिस होता क्या है इसको समझने के लिए मैनेजमेंट के डिसीजंस को अगर आप देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपने डिसीजंस ले रही होती है उसका एक प्रोसेस होता है। हर डिसीजन एक ही तरीके कार से नहीं लिया जाता, बल्कि जो डिसीजंस लेने होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस चीज़ का डिसीजन लेना है और उसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन डिसीजन कोई भी हो, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि आपको ये मालूम हो कि प्रॉब्लम आपके सामने क्या है, क्वेश्चन आपके सामने क्या है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस मौजूद हैं। हर अल्टरनेटिव, हर चॉइस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है, हर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है कि आया इस फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को अगर लेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी, कितना मुनाफा होगा, सेकेंड ऑल्टरनेटिव अगर अडॉप्ट करते हैं उससे क्या फ़ायदा होगा। तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिफरेंट चॉइसेस के रिलेटेड डेटा को एक्यूमुलेट किया जाता है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट। और उन डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस में से ये फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा। ये डिसीजन इंक्रीमेंटल एनालिसिस कहलाता है। ये डिसीजन इंक्रीमेंटल एनालिसिस के जरिए से लिया जाता है। डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस के दरमियान में ये फैसला करना कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए बेहतर है,
ये इंक्रीमेंटल एनालिसिस का प्रोसेस है। और जब वो डिसाइड हो जाता है, डिसीजन ले लिया जाता है, तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ देखें जो हमने लिखवाया इंक्रीमेंटल एनालिसिस की हेडिंग डाल के। हमने लिखवाया द प्रोसेस used to identify the financial data that change under alternative course of action। एक ऐसा प्रोसेस जो कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, आपके डिफरेंट चॉइसेस, आपके डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है, फाइनेंशियल डेटा की जो चेंजेस आ रही हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू का जो फर्क आ रहा है डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस के दरमियान, उनको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस इंक्रीमेंटल एनालिसिस कहलाता है। दोबारा इस वर्डिंग को देखें। the process used to identify the financial data that change under alternative course of action। जो मुख्तलिफ होता है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में, वो फाइनेंशियल डेटा को आइडेंटिफाई करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंक्रीमेंटल एनालिसिस। इस इंक्रीमेंटल एनालिसिस को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास कुछ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। वो 3 हेडिंग्स मैंने कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स की आपको लिखवाई है। चेक करें अपने पास। नंबर 1 रिलेवेंट कॉस्ट। नंबर 1 रिलेवेंट कॉस्ट। ये 3 जो हेडिंग्स हैं ये बेसिकली कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन डिफरेंट डिसीजंस में इस्तेमाल हो। रिलेवेंट कॉस्ट किसे कहा जाता है? वो कॉस्ट जो कि डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, वो कॉस्ट जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में चेंज हो जाए। एक अल्टरनेटिव और दूसरे अल्टरनेटिव को अगर कंपेयर किया जा रहा है तो वो कॉस्ट जो कि इस अल्टरनेटिव में अलग और इस अल्टरनेटिव में अलग आ रही है वो कहलाएगी रिलेवेंट कॉस्ट। लेकिन वो कॉस्ट जो दोनों अल्टरनेटिव्स के अंदर सेम हो वो इररिलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी। अब पढ़ें इस सेंटेंस को जो हमने रिलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन में लिखवाया है। इन इंक्रीमेंटल एनालिसिस the only factors to be considered, सिर्फ वो फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं are those cost and revenue। कॉस्ट और रेवेन्यू के सिर्फ वो फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं that differ across alternatives, जो मुख्तलिफ होते हैं मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स के दरमियान। that differ across alternatives, those factors are called relevant cost। फिर नीचे आपको लिखवाया कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू that do not differ, वो कॉस्ट और रेवेन्यू जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के अंदर सेम होते हैं या डिफरेंट नहीं होते, do not differ across alternative, उनको इग्नोर किया जा सकता है। इंक्रीमेंटल एनालिसिस के अंदर उसे इग्नोर किया जा सकता है when trying to choose between alternative। जब हम चूज कर रहे हो मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को चूज कर रहे हो, तो ऐसी तमाम कॉस्ट जो कि रिलेवेंट नहीं है, ऐसी तमाम कॉस्ट जो कि इररिलेवेंट है, और इररिलेवेंट की पहचान यह है कि वो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर डिफर नहीं कर रहे, डू नॉट डिफर, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा इंक्रीमेंटल एनालिसिस के वक्त। या आसान अल्फाजों में कहा जाए कि इंक्रीमेंटल एनालिसिस के वक्त सिर्फ रिलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है जो कि डिफर हो रही होती है अक्रॉस दी ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट हेडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब आप डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से किसी भी एक ऑल्टरनेटिव को चूज कर लेते हैं तो यकीनन बाकी ऑल्टरनेटिव्स को ड्रॉप करना पड़ता है। किसी एक ऑल्टरनेटिव को आपने चूज कर लिया तो बाकी ऑल्टरनेटिव ड्रॉप करने पड़ेंगे। बाकी ऑल्टरनेटिव जो ड्रॉप किए, अगर वो ऑल्टरनेटिव एडॉप्ट किए जाते, उससे हासिल होने वाला फायदा भी
ड्रॉप हो गया, अब वो जो अल्टरनेटिव आपने छोड़ दिए उनसे हासिल होने वाला बेनिफिट भी आपने छोड़ दिया। लिहाजा जिस अल्टरनेटिव को चूज किया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बेनिफिट है जो आपने छोड़ दिए उसको चूज करने के लिए। अब सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, उस पर गौर कीजिएगा जो पैराग्राफ लिखवाए। ऑफन इन चूजिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन द कंपनी मस्ट गिव अप, छोड़ देती है, गिव अप कर देती है, द अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम सम अदर कोर्स ऑफ एक्शन। लाजमी बात है कि जब आप किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को लेते हैं, किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को हासिल करते हैं, चूज करते हैं, तो लाजमी कंपनी को गिव अप करने पड़ते हैं बेनिफिट्स जो कि दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन से हासिल हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मशीन इज यूज्ड टू मेक वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मशीन है, आप उससे डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन आपने किसी एक प्रोडक्ट को चूज कर लिया कि हम ये प्रोडक्ट इस मशीन से बनाएंगे। इफ अ मशीन इज यूज्ड टू मेक वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, द बेनिफिट ऑफ मेकिंग अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वो बेनिफिट जो दूसरी प्रोडक्ट्स से हासिल हो सकते थे, दूसरी प्रोडक्ट्स को बना के जो बेनिफिट हासिल हो सकते थे, अब वो बेनिफिट हासिल नहीं होंगे। दिस लॉस्ट बेनिफिट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या कहलाएगा? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आप अपनी इस वक्त एजुकेशन के साथ ट्यूशंस पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कोचिंग में जाकर पढ़ाते हैं या घर पे ट्यूशंस पढ़ाते हैं, और उससे आपको महीने की 15-20 हज़ार रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो जाती है ट्यूशंस पढ़ाने से। अब आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है, बीएस कंप्लीट हो जाता है और आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी जगह पर, अच्छी किसी इंडस्ट्री में, बैंक में, कहीं पर भी आपको जॉब की ऑफर हुई। अब आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स आ गए, या तो आप उसी ट्यूशंस को कंटिन्यू रखें या उन ट्यूशंस को छोड़कर जॉब कर ली जाए। जॉब को करने के लिए अगर आप जॉब के ऑप्शन को हासिल करना चाहते हैं, इस चॉइस को लेना चाहते हैं कि आप जॉब कर लें, तो आपको लाजमी ट्यूशन छोड़नी पड़ेगी। ट्यूशन से कितना बेनिफिट हो रहा था? 20,000 का। तो कहा यह जाएगा कि उस जॉब को हासिल करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 20,000, यानी उस जॉब को हासिल करने के लिए जो बेनिफिट आपने लॉस कर दिए, जो बेनिफिट गिव अप कर दिया आपने, वो 20,000 के बेनिफिट उस जॉब की क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट हेडिंग, sunk cost. Costs that have already been incurred and will not be changed. वो कॉस्ट जो कि incurred हो गई, अकर हो गई, वो कॉस्ट जो किसी चीज पर आ चुकी है, चाहे उसकी खरीदारी पर हो या रिपेयरिंग पर हो। Costs that have already been incurred and will not be changed or avoided by any present or future decisions refer to sunk cost. ये लिखवाया हुआ है। वो तमाम कॉस्ट जो ऑलरेडी incurred हो गई हैं और वो चेंज नहीं हो सकती या उन्हें अवॉइड नहीं किया जाता, by any present or future decisions are referred to as sunk cost. अब एग्जाम्पल क्या है? पहले एग्जाम्पल देखें इसकी। The amount you spent in past to purchase or repair a machine. आपने 2018 में अपनी कंपनी के लिए स्प्लिट एसी खरीद लिए, उसको इंस्टॉल भी करवा दिया। 3 साल के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आया इन्हीं स्प्लिट एसी को कंटिन्यू रखा जाए या जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है इन्वेंटर्स की, उससे रिप्लेस कर दिया जाए। चलने में उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है, 3 साल ही हुए अभी, 3 साल ही डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, लेकिन क्या नए इन्वेंटर्स को इंस्टॉल कर लिया जाए, उसको रिप्लेस करके पुराने
स्प्लिट एसी को। इस फैसले में ये देखा जाएगा कि आया जो स्प्लिट एसी अभी कंटिन्यू है, इसको कंटिन्यू रखने में कितनी कॉस्ट आ रही है। कंटिन्यू रखने में सालाना ऑपरेशन कॉस्ट, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस, वो सालाना कितने आ रहे हैं आइंदा आने वाले 5 साल तक, जब तक वो इस्तेमाल हो सकता है, जब तक उसकी लाइफ है। उसको कंपेयर किया जाएगा नए एसी की खरीदी हुई कॉस्ट और आइंदा आने वाले 5 सालों तक उसके यूजेस पर, यानी उसके एक्सपेंसेस पर, उसके आने वाली कॉस्ट, यूटिलाइजेशन कॉस्ट पर। वो कॉस्ट जो कि पुराने एसेट्स को खरीदने में आई थी 2018 में, आज से 3 साल पहले, वो कॉस्ट सक कॉस्ट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप कंपेयर कर रहे होंगे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को, क्या या इसको रिप्लेस कर दिया जाए या उसको कंटिन्यू रखा जाए, उसमें इन फ्यूचर आने वाली एक्सपेंसेस को डिस्कस किया जाएगा, इन फ्यूचर आने वाली कॉस्ट को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन वो कॉस्ट जो माजी में अकर हो चुकी है, वो कॉस्ट जो उस मशीन की खरीदारी पे अकर हो चुकी है, उस कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो कॉस्ट सक कॉस्ट कहलाती है और सक कॉस्ट जो है वो इररिलेवेंट कॉस्ट होती है। सक कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ इस सेंटेंसेस को, अपने पास रजिस्टर पे भी देखिए। Costs that have already been incurred and will not be changed or avoided by any present or future decisions are referred to as sunk cost. For example, amount you spend in past to purchase or repair a machine should have no bearing on your decision whether to buy a new machine. चाहे आप न्यू मशीन खरीदे या ना खरीदे, माजी में जो आपने खर्चा कर दिया परचेजिंग पर या रिपेयरिंग पे, उसका कोई असर नहीं होगा इस डिसीजन के ऊपर कि नया इक्विपमेंट खरीदा जाए या ना खरीदा जाए। लिहाजा सक कॉस्ट जो है वो आर नॉट रिलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट आगे डिसीजंस में इस्तेमाल हो। अब हमने हेडिंग करवाई टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंटल एनालिसिस। इंक्रीमेंटल एनालिसिस के लिए शुरू में वेरी फर्स्ट पैराग्राफ जो आपको आज लिखवाया उसमें बता दिया कि इंक्रीमेंटल एनालिसिस वो प्रोसेस है जो इस्तेमाल होता है डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के दरमियान में से किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना। इस प्रोसेस को कहते हैं इंक्रीमेंटल एनालिसिस। बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, बेशुमार फैसले करने होते हैं, लेकिन जो बहुत ही कॉमन डिसीजंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये 5 बहुत ही कॉमन, बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हर बिजनेस के डिसीजंस होते हैं, ये उनको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। A number of different types of decision involve incremental analysis. The more common types of decisions as follows. Number 1, accept an order at a special price. Accept an order at a special price. आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं $100 में और उसको बनाने में कॉस्ट आ रही है $75। सेल कर रहे हैं $100 में, बनाने में कॉस्ट आ रही है $75 की, जो आपका नॉर्मल रूटीन का काम। आपके पास एक ऑर्डर आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे 20,000 यूनिट्स चाहिए, लेकिन ये यूनिट्स मैं आपसे 100 में नहीं दूंगा। आप मुझे ये 20,000 यूनिट्स $70 में दें। कितने में दें? $70 में दें। एक आम बंदे के फौरन बात ज़हन में आएगी कि $75 तो उसको बनाने में कॉस्ट आ रही थी। How can it possible to sell $70? लेकिन इंक्रीमेंटल एनालिसिस जरूरी है। इंक्रीमेंटल एनालिसिस से ही पता ये चलेगा कि आया ये ऑर्डर फिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, ये स्पेशल ऑर्डर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपने क्या ऐसा क्यों?
नजर आ रहा है $5 का नुकसान होगा, ऐसा नहीं। जब हम इंक्रीमेंटल एनालिसिस करेंगे तो उसमें जब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कंपैरिजन किया जाएगा तो यहाँ पे देखा जाएगा कि $75 की जो कॉस्ट आ रही है एक यूनिट को बनाने में, इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है। क्योंकि जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाएंगे फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कौन सी, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। अगर आप पहले 50,000 यूनिट्स बना रहे थे और अब 70,000 यूनिट बनाने पड़ेंगे स्पेशल ऑर्डर की वजह से, तो फिक्स कॉस्ट पहले 50,000 पे डिवाइड हो रही थी, अब वही फिक्स कॉस्ट 70,000 पे डिवाइड हो। यहाँ पर ये फाइनेंशियल डेटा लेकर और इंक्रीमेंटल एनालिसिस के प्रोसेस से गुजर कर ही हम फैसला कर सकते हैं कि आया इस एक्सेप्ट किया जाए इस स्पेशल ऑर्डर को या रिजेक्ट किया जाए। नंबर सेकंड, मेक और बाय कंपोनेंट्स, पार्ट्स और फिनिश प्रोडक्ट। मुख्तलिफ कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है वो अपने डिफरेंट पार्ट्स को, मिसाल के तौर पे एक बाईसाइकिल कंपनी है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट वैरायटीज के पार्ट्स हैं, यानी कहीं पार्ट्स में मेटल इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं पार्ट्स सीट की तैयारी में फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, कहीं प्लास्टिक इस्तेमाल हो रही है, तो डिफरेंट टाइप्स। आया कंपनी हर पार्ट खुद बनाए या किसी दूसरी पार्टी से वो खरीद ले, आउटसोर्सिंग कर दे, ये डिसीजंस कैसे लिए जाए? क्या है ये पार्ट हम खुद बनाए या ये पार्ट हम किसी दूसरे से बनवा लें? बाय करने में फायदा है या मेक करने में फायदा है? इसे कहा जाता है बाय और मेक डिसीजन। बाय किया जाए और मेक किया जाए, बाय एंड मेक डिसीजन। मेक और बाय यहाँ लिखवाया मैंने, मेक और बाय डिसीजन। आप कंपोनेंट्स खुद बनाए या बाय करें, फायदा किसमें है? किस तरह पता चलेगा? प्रोसेस से गुजरना होगा इंक्रीमेंटल एनालिसिस। तीसरा डिसीजन, सेल प्रोडक्ट और प्रोसेस फर्दर। बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उनके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। मिल्क पैक तैयार हो रहा है अगर, या कहीं पर मिल्क डेयरी फॉर्म है, तो वहां पे जो मिल्क को प्रोसेस किया जा रहा है मिल्क पैक बनाने के लिए, तो सिर्फ मिल्क पैक में ही जाके मामला नहीं रुकेगा, बल्कि उस मिल्क को कंडेंस फॉर्म में लाकर, पाउडर फॉर्म में लाकर भी सेल किया जा सकता है, लेकिन उसमें फर्दर प्रोसेस करना होगा। एक स्टेज यह है कि आप मिल्क को डिब्बों में पैक करें और सेल आउट कर दें। नेक्स्ट स्टेज यह है कि उसी मिल्क को आप फर्दर प्रोसेस करके कंडेंस फॉर्म में लेकर आए, पाउडर फॉर्म में लेकर आए और वो पाउडर फॉर्म फिर सेल आउट करें। आया मिल्क फॉर्म में सेल आउट करना ज्यादा बेनिफिशियल है या पाउडर फॉर्म में सेल आउट करना ज्यादा बेनिफिशियल है? ये डिसीजन दिया जाएगा थ्रू इंक्रीमेंटल प्रोसेस, थ्रू इंक्रीमेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट हेडिंग, रिपेयर, रिटेन और रिप्लेस इक्विपमेंट। मिसाल मैंने आपको दी थी स्प्लिट एसी की, या कोई भी मशीनरी। आपने कंप्यूटर अपने पास मशीन खरीदी भी है, आपको लगा ये कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें अपना सीपीयू चेंज कर लेना चाहिए। आपका प्रिंटर, ऑफिस में जो प्रिंटर यूज हो रहा है वो पर आवर कितने पेजेस प्रोड्यूस करता है? आया उसी प्रिंटर को यूज करते रहे या नई टेक्नोलॉजी, नए डिजाइन, नए मॉडल का प्रिंटर परचेज कर लिया जाए? ये डिसीजन के आया उसी मशीन को
कंटिन्यू रखा जाए, इसको कहते हैं रिटेन करना, उसकी रिपेयरिंग करवा के उसको सही कर लिया जाए, उसको अपग्रेड कर दिया जाए, या उसको सेल करके नया खरीद लिया जाए। ये डिसीजन इंक्रीमेंटल एनालिसिस से रिटेन, रिपेयर, रिटेन और रिप्लेस इक्विपमेंट। एंड फिफ्थ वन इज एलिमिनेट। किस चीज को एलिमिनेट कर दे भाई? एलिमिनेट एंड अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट, ऐसे कारोबार के ऐसे हिस्से, कारोबार की ऐसी प्रोडक्ट, कारोबार की ऐसी ब्रांचेस जो अनप्रॉफिटेबल है, उनको कंटिन्यू रखा जाए या उन्हें क्लोज कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई प्रोडक्ट है जो आपकी बहुत कम डिमांड है, बहुत कम सेल होती है, नुकसान देती है वो प्रोडक्ट। इंस्टीट्यूट में 9 से लेकर मास्टर्स तक की क्लासेस हो रही हैं। पता चला 9 मैट्रिक में 300 बच्चे आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 200 बच्चे आते हैं, ग्रेजुएशन में 100 बच्चे आते हैं, लेकिन मास्टर्स में 10 बच्चे आते हैं सर ट्यूशन पढ़ने के लिए। वो मास्टर्स की क्लास के ऊपर मास्टर्स की जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं उनके भी पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे भी बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं ले सकते कंपटीशन की वजह से, नुकसान होता है उन क्लासेस को चलाने के लिए, बंद कर दें उन क्लासेस। ये फैसला भी इंक्रीमेंटल एनालिसिस से होता है, क्या यह बंद करने में फायदा होगा या नुकसान के बावजूद उसको कंटिन्यू रखने में कंपनी का ओवरऑल फायदा है। रीजन यहाँ पे वही कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। 5 प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, 5 सर्विसेज दे रहे हैं, फिक्स कॉस्ट 5 में डिवाइड होगी। अगर आपने एक एलिमेंट एलिमिनेट कर दिया, अब वो फिक्स कॉस्ट 4 में डिवाइड होगी। पता चला पहले टोटल मुनाफा था $60,000 का, $60,000 का, उस $60,000 में $10,000 का नुकसान भी शामिल था। यानी अगर वो $10,000 निकाल दे, एलिमिनेट कर दे, तो मुनाफा बाज़ाहिर लगेगा कि 60 से 70 हो जाएगा, लेकिन पता चला कि जब एलिमिनेट करके कैलकुलेशन करी तो मुनाफा 50 से कम होकर 40 रहे, ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। ये सारे डिसीजंस इंक्रीमेंटल एनालिसिस पर बेस करते हैं, और इन तमाम डिसीजंस में जो डेटा यूज होता है वो चैप्टर 5 और 6 में जो हमने पढ़ा, वेरिएबल कॉस्टिंग का, सीवीपी एनालिसिस का, कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स का, वो कॉन्सेप्ट, वो डेटा इस इंक्रीमेंटल एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। वो वेरिएबल कॉस्ट, वो फिक्स कॉस्ट, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट डिसीजन की तरफ चलते हैं, हेडिंग डालिएगा अपने पास, एक्सेप्ट एन ऑर्डर। Accept an order at a special price. मैं ज़रा ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन करवा दूँ, उसके बाद मैं ज़रा कंटिन्यू करता हूँ। टाइम ख़त्म हो गया था जूम की मीटिंग का, मैं इसको 12 से करेक्ट करके क्लास 296 पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, मैंने ये पेज ग्रुप पे शेयर कर दिया है, ग्रुप पे देख।
इसमें एक्सेप्ट एन ऑर्डर एट स्पेशल प्राइस। रीड कर रहा हूं मैं, आप जरा इसको कंसंट्रेट करें। Sometime a company have an opportunity to obtain additional businesses if it is willing to make a major price concession to a specific customers. To illustrate, assume that company produce 1 lakh units तैयार कर रही है blenders के per month. Production 1 lakh per month है, which is 80% of plant capacity. अब देखिए यहाँ क्या क्या चीजें ज़हन में रखनी है कि प्रोडक्शन जो हो रही है वो प्लांट की कैपेसिटी का 80% है। इसका मतलब आपके पास गुंजाइश है मजीद 20% बनाने की, ये गुंजाइश होना जरूरी। अगर आप पहले ही 100% प्रोडक्शन कर रहे हैं उस वक्त फिर स्पेशल ऑर्डर पर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जरूरी है आपके पास कैपेसिटी हो, कुछ आइडल कैपेसिटी जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अभी ये डिसीजन आउटसोर्स वाला नहीं। 80% which is 80% of plant capacity, variable manufacturing cost is $8 per month per unit, fixed manufacturing cost 4 lakh और $4 per unit। जो प्रोडक्ट बन रही है स्मूथिंग ब्लेंडर्स are normally sold directly to the retailers at $20 each। ये एक नॉर्मल प्राइस है जिस पर वो अपने यूनिट सेल करता है, $20 each। Sublet यानी कंपनी has an offer from another company, Kingston company, a foreign wholesaler, to purchase additional 2000 blenders at $11 per unit। नॉर्मल सेल हो रही थी $20 पर यूनिट में, $20 पर यूनिट में। महीने की प्रोडक्शन थी 1 लाख यूनिट बनाने की पर मंथ, लेकिन 80% कैपेसिटी को आप यूटिलाइज कर रहे थे। एक फॉरेन कस्टमर आया, यहाँ फॉरेन कस्टमर की भी नाम इसलिए लिखना जरूरी है कि आप जिस मार्केट में आपका जो एक सर्किल है अपनी मार्केट का, जहां तक आप अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, उसी मार्केट में अगर आपसे कोई कम प्राइस में खरीदेगा तो इस बात के चांसेस हैं कि आपकी मार्केट इफेक्टेड हो जाए, आपकी सेल इफेक्टेड हो जाए। यानी आप सेल कर रहे हैं $20 में, उसी मार्केट में रहते हुए बंदा आपसे $11 में खरीदे और $15 में सेल करना शुरू कर दे, तो वो आपसे $20 में कौन खरीदेगा? इसलिए यहाँ कहा गया कि एक फॉरेन कस्टमर का आया ऑर्डर, यानी इसका मतलब बताने का यह है कि वो आपकी मार्केट से बाहर था। एक्सेप्टेंस द ऑफर वुड नॉट इफेक्ट नॉर्मल सेल ऑफ द प्रोडक्ट। ये बात अस्यूम कर ली गई है कि अगर ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो इसलिए इफेक्ट नहीं करेगी कि वो आपकी जो रेंज थी, आपका जो मार्केट थी, आपके जो सर्किल था उससे बाहर है। एंड एडिशनल यूनिट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, और एडिशनल यूनिट भी बनाए जा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग प्लांट कैपेसिटी, क्योंकि प्लांट 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा था, 20% कैपेसिटी मौजूद थी, लिहाजा फर्दर मजीद यूनिट बनाए जा सकते हैं बगैर फिक्स कॉस्ट को बढ़ाए हुए। व्हाट शुड द मैनेजमेंट डू? अब उसका प्रोसेस बताया गया है कि आप उसको एनालाइज किस तरह करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। If management makes its decision on the basis of the total cost per unit of $12, अगर आप डेटा देखें तो वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी पहले $8 की और फिक्स कॉस्ट 4 लाख थी, जो कि 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड होकर $4 आएगी। तो इसका मतलब पहले जो कॉस्ट आपके पास डेटा में गिवन है वो बता रही है कि टोटल कॉस्ट $12 की आ रही है, 8 + 4, 8 वेरिएबल 4 फिक्स, $12 की आ रही है। The order would be rejected because the cost per unit $12 would exceed revenue per unit $11 by 1 per unit। उसने कहा अगर आप टोटल कॉस्ट को देखेंगे तो वो तो $12 है, और उस $12 को बेस बनाते हुए आप ये ऑर्डर रिजेक्ट कर देंगे, आप ये ऑर्डर नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर आपसे मांगा जा रहा है स्पेशल प्राइस $11 पर, और आपको $1 का इसमें नुकसान हो जाएगा।
अगर आप टोटल कॉस्ट को कंसीडर करें। आगे क्या कहा गया? However, since the units can be produced within existing plant capacity, the special order will not increase fixed cost. The special order will not increase fixed cost. Let's identify the relevant data. अब यहाँ पर देखना है कि वो कौन सी कॉस्ट है जो रिलेवेंट है। रिलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन अभी लिखी थी, यहाँ उस रिलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन आ रही है। लेट्स आइडेंटिफाई द रिलेवेंट कॉस्ट फॉर द डिसीजन। क्या पढ़ी थी रिलेवेंट कॉस्ट? सर आपकी दोबारा एक नजर उस लाइनों को पढ़े जो रिलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन लिख पाई। उसने लेट्स डिसाइड, लेट्स आइडेंटिफाई कि इसके अंदर कौन सी कॉस्ट है जो रिलेवेंट है। जी, रिलेवेंट कॉस्ट की क्या डेफिनेशन थी? वो कॉस्ट जो कि डिफर होती है, मुख्तलिफ होती है, चेंज होती है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हम अगर 2000 यूनिट्स मजीद बनाएं तो क्या फिक्स कॉस्ट चेंज होगी? नो सर, नहीं होगी। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट यहाँ पर इररिलेवेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन में चेंज नहीं हो रही, वो इररिलेवेंट कॉस्ट है, वो रिलेवेंट कॉस्ट नहीं। Let's identify the relevant data for decision. First, the variable manufacturing cost will increase by $60,000. क्यों? 2000 यूनिट अगर और बनेंगे तो $8 पर यूनिट के हिसाब से $16,000 का कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट में, नए ऑर्डर को एक्सेप्ट करने की वजह से। सेकेंड, द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू विल इंक्रीज। फिक्स कॉस्ट तो इंक्रीज होगी नहीं क्योंकि वो इररिलेवेंट। दूसरी जो चीज चेंज होगी वो क्या है? वो रेवेन्यू है। द सेकेंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू विल इंक्रीज। रेवेन्यू में कितना इजाफा होगा? 22,000 का, क्योंकि 2000 यूनिट $11 के हिसाब से जब सेल होंगे तो $22,000 आपके पास आएंगे। अब वो कह रहा है कि अब आप कंपेयर करें कि कॉस्ट में इजाफा हुआ $16,000 का, 2000 यूनिट स्पेशल ऑर्डर वाले बनाने से वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हुआ $16,000 का, लेकिन उससे रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ? $22,000 का हुआ। तो ये डिसीजन क्या कहता है? ये एनालिसिस ये कहता है कि यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर जो कि $11 का है, अगर हम आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपको मुनाफा $6,000 का एक्सेस होगा, ज्यादा होगा। बाज़ाहिर लग रहा था कि $1 का नुकसान है, लेकिन नहीं। अब इसी चीज को उसने टेबल में शो किया है कि इस कंपनी विल इंक्रीज नेट इनकम, इट्स नेट इनकम बाय $6,000 बाय एक्सेप्टिंग दिस स्पेशल ऑर्डर। इसको सॉल्व किस तरह आप लोग करेंगे? ये टेबल बना के, जो टेबल आपको नजर आ रहा है, आप रेवेन्यू और कॉस्ट एक कॉलम में लिखेंगे, सेकंड कॉलम में ऑर्डर को रिजेक्ट करने से क्या होगा और ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से क्या होगा। अगर आप ऑर्डर को रिजेक्ट करते हैं तो कोई रेवेन्यू में इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो रेवेन्यू में इजाफा 22,000 का। अगर आप ऑर्डर को रिजेक्ट करते हैं तो कॉस्ट में जीरो इजाफा, कोई इजाफा नहीं है, लेकिन अगर आप ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट ऑर्डर, तो कॉस्ट में इजाफा 16,000 का, रेवेन्यू में इजाफा 22,000 का, कॉस्ट में इजाफा 16,000 का, तो नेट इनकम में कितना इजाफा? 6,000। लिहाजा यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा ये स्पेशल ऑर्डर, क्योंकि नेट इनकम में इजाफा हो रहा है बाय $6,000। ये डिसीजन लेंगे। लेकिन दो चीजें इसमें ख्याल रखनी है जो नीचे पैराग्राफ में बताई जा रही है। कौन सी दो चीजें देखें इसमें? 2 points should be emphasized. First, we assume that the sale of product in other market would not be affected by special order. ये assume कर लिया जाए, इस बात की assumption जरूरी है कि सेल ऑफ प्रोडक्ट
दूसरी मार्केट में होगी, जिससे आपकी मार्केट, आपकी सेल इफेक्टेड ना। नंबर सेकंड, इफ अदर सेल वर अफेक्टेड, अगर सेल इफेक्टेड हो रही है, द सबलेट वुड हैव टू कंसीडर द लॉस्ट सेल इन मेकिंग द डिसीजन। अगर सेल आपकी इफेक्टेड हो रही है उससे, तो लाजमी ये देखना पड़ेगा कि उस सेल के इफेक्ट होने से कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप पहले कितने यूनिट्स बना रहे थे पर मंथ? 1 लाख। 2000 का स्पेशल ऑर्डर आया, आपने कहा अगर ये 2000 का मैं स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो कम से कम 500 यूनिट्स की सेल मेरी कम हो जाएगी। कितने यूनिट्स की? अब वो 500 यूनिट्स इफेक्ट कर रहे हैं रिजेक्ट होने से और एक्सेप्ट करने से, यानी ये कॉस्ट आपकी जो है रिलेवेंट कॉस्ट हो गई, क्योंकि इस नुकसान की वजह से आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू पे इफेक्ट आ रहा है। आपने वो $500 को मल्टीप्लाई किया, जितने में आप उसको सेल कर रहे थे वो $20 में सेल कर रहे थे। 500 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आया अमाउंट? 500 मल्टीप्लाई बाय 20 10,000 आया। पता चला कि 10,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ जाएगा अगर आपने 2000 स्पेशल ऑर्डर पे अपना सामान $11 पे दे दिया। तो पहले तो 6,000 का मुनाफा नजर आ रहा था, लेकिन जब ये 10,000 का नुकसान सामने आया तो मुनाफा 4,000 के नुकसान में बदल गया, क्योंकि 10,000 में से 6,000 का निकाल दो तो बाकी बचे 4,000। उस कंडीशन में फिर ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेकंड चीज क्या देखनी है? इफ सबलेट कंपनी इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। दूसरी चीज ये देखनी है कि कंपनी अगर फुल कैपेसिटी में अपना काम कर रही है, 100% कैपेसिटी को इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसी सूरत में भी इट इज लाइकली दैट द स्पेशल ऑर्डर वुड बी रिजेक्टेड। क्यों? जब आप अपनी फुल कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उसको 100% इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यूनिट भी अगर आप और बनाएंगे तो आपको नए रिसोर्सेज खरीदने होंगे, नई जगह लेनी होगी, नई मशीन खरीदनी होगी, नए वर्कर्स रखने होंगे। लिहाजा ऐसी सूरत में ऑर्डर को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। Under such circumstances, the company would have to expand plant capacity, क्योंकि अगर 100% यूटिलाइजेशन हो रही है, 100% कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है, तो उसको प्लांट एक्सटेंड करना होगा। इन दैट केस द स्पेशल ऑर्डर वुड हैव टू एब्सॉर्ब दिस एडिशनल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज वेल एज द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग। तो फिर उस स्पेशल ऑर्डर को ना सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेयर करनी होगी, बल्कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बेयर करनी होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन निकाले एक्सरसाइज की। एनी क्वेश्चन? ये ऑनलाइन जो है जी बोले। अगर आप एक प्रोडक्ट कराची में सेल कर रही है और एक बंदा कराची में वो सेल हो रहा है 20 रुपीज़ में पर यूनिट, और आपसे स्पेशल ऑर्डर में कहा जाता है कि हमें वो 11 रुपीज़ में दे दिया जाए और कराची में ही हम इसको सेल करेंगे। तो लाजमी बात है कि कराची। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर E7-2 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 रीड करें और बताएं इसमें क्या करना चाहिए। E7-2 ये जो ऑर्डर है ये स्पेशल ऑर्डर है।
मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना। दो काम इसमें सबसे पहले करें, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग करें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम करने पहला काम। फिर ये मालूम करें कि इसमें आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कॉस्ट रिलेवेंट है, कौन सी इररिलेवेंट है, और उसके बाद टेबल बनाएंगे। और टेबल बना के जिस तरह भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, इन्होंने टेबल बनाकर जो जो रेवेन्यू और कॉस्ट रिलेवेंट थी उसका इफेक्ट देख लिया था कि रिजेक्ट करने में क्या आ रहा है और एक्सेप्ट करने में क्या आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम करें जरा इसमें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सेलिंग प्राइस तो यही है, सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस साल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $3 निकल कर आई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $3। सेलिंग प्राइस है, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो नहीं है इसमें, वो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दें मार्जिन निकालने के लिए।
ट्राई करें कौन सी कौन बताएगा कि कमीशन क्यों नहीं लिया? कौन बताएगा कि कमीशन क्यों नहीं लिया? या कमीशन देना चाहिए था, भूल गए? जल्दी बताएं। रिलीवेंट और इनरिलीवेंट की बात अभी तो बता रहा था मैं कि रिलीवेंट कॉस्ट और रिलीवेंट कॉस्ट हो चुके चेंज आउट देखा कि अगर आप ये फर्दर देंगे तो उसमें आपको कोई कमीशन देना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये ऑर्डर आप रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, कमीशन वही रहेगा जो पहले था। हाँ, अगर इस पे कमीशन देना पड़ रहा होता या कम रेट से ज़्यादा तो वो लाजमी नहीं। लिहाजा कमीशन इसमें जो है वो इररिलेवेंट कॉस्ट। कॉपी करने के बाद क्वेश्चन 7-3 स्टार्ट करें। 7-3 स्टार्ट करें कॉपी करने के बाद। ये मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की आप उसमें सबसे पहले काम ये करें कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग करें और फिर वेरिएबल पर यूनिट मालूम करें। फर्स्ट स्टेप पे वेरिएबल और फिक्स को अलग करें और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 70% और 30% ले लें। ये अपने पास फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आ गया सेल का, है ना। वो आएंगे, वो कैलकुलेटर आएंगे उसके नीचे आया ना वो कर रहा है। अमाउंट बता फटाफट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,20,000 वेरिएबल कॉस्ट सही किया है। सही है। मतलब कैलकुलेट सही कर हाँ, मतलब 1820 to 2.0 फिक्स कॉस्ट इसका लिए 780 फिर दोबारा 0 लिख, हाँ फिर 3 बार 0 लिख। 7,80,000 बना हुआ है।
जी रेवेन्यू में बताएं कितना इजाफा हो रहा है एक्सेप्ट करने पे। स्पेशल ऑर्डर जो आ रहा है, स्पेशल ऑर्डर क्या बताइए कितना है? स्पेशल ऑर्डर है 15,000 यूनिट्स और रेवेन्यू 7.6 15,000 यूनिट्स को 7.6 से मल्टीप्लाई कर दें। 7.6 से यस 1 लाख। रेवेन्यू में इजाफा 1,14,000। वेरिएबल कॉस्ट बताइए। $15,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कितनी अमाउंट? 1,05,000। और इसके साथ फिक्स कॉस्ट में तो इजाफा या चेंज नहीं आ रहा। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर इररिलेवेंट है, लेकिन इसके अलावा इस स्पेशल ऑर्डर की वजह से शिपमेंट चार्जेस देने पड़ रहे हैं। शिपमेंट कॉस्ट आ रही है कितनी? $3,000 की शिपमेंट कॉस्ट। $3,000 की कॉस्ट आ रही है, जिससे इनकम में 3,000 की कमी हो जाएगी। बताइए टोटल इनकम इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? आपकी नेट इनकम में इजाफा कितना हुआ? 6,000। तो डिसीजन क्या होना चाहिए? कंपनी शुड एक्सेप्ट दिस स्पेशल ऑर्डर। यहाँ भी ये लिख लें, वहाँ भी ये लिख लें। कंपनी शुड एक्सेप्ट स्पेशल ऑर्डर बिकॉज नेट इनकम इंक्रीज बाय $3,000 और यहाँ लिखे कंपनी शुड एक्सेप्ट स्पेशल ऑर्डर बिकॉज net income increased by $6,000. पॉजिटिव रेट आने का जो वो है परसेंटेज वो बढ़ने के खदशात है और नेक्स्ट वीक हो सकता है वो 20% तक चली जाए और दोबारा से पाबंदियाँ सख्तियाँ इजाफा कर दी जाए। हेडिंग डाले मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन। ये जो क्वेश्चन है 7(1)(a) इसमें क्या इनकम आ रही है, लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है? 30,000 इनकम में इजाफा हो रहा है। एक्सेप्ट ऑर्डर आपका क्या आ रहा है बेटा? 30,000 आ रहे हैं, लेकिन उसमें सी कॉर्ड चेक कर लें।
सी पार्ट का वो जरा देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन भी आपको हमने 7-1 दिया था, इसका सी पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ द स्पेशल ऑर्डर टू प्रोड्यूस नेट इनकम ऑफ $4 पर बॉल। अगर आप नेट इनकम $4 हासिल करना चाहते हैं तो स्पेशल ऑर्डर की तो मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? आप रिवर्स प्रोसेस करें, $4 इनकम जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें स्पेशल ऑर्डर में 10,000 बास्केटबॉल्स आई थी जो स्पेशल ऑर्डर की। आप 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके इनकम निकालें, कितनी बनी? 40,000। उसके बाद फिर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट इसमें कितनी आई थी बेटा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही थी? 23.5। फिक्स कॉस्ट का टोटल करके और मालूम करें पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके, यानी 1,20,000 यूनिट्स प्लस 10,000 यूनिट्स। 1,30,000 यूनिट से डिवाइड करके फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। और जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें 1,30,000 यूनिट पर, तो फिर 10,000 यूनिट्स की कितनी फिक्स कॉस्ट होगी वो मालूम कर लें। फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास? 9.11 आ रही है फिक्स कॉस्ट 1,30,000 यूनिट से डिवाइड करके। ओके, आपने नेट इनकम निकाली 10,000 यूनिट्स स्पेशल ऑर्डर के, मल्टीप्लाई बाय $4 40,000। इस 40,000 में फिक्स कॉस्ट 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 9. मल्टीप्लाई कर दें 153 प्लस कर दें 153 ऐड कर दीजिए इसको। कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस कर दें इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 10,000 यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या थी? 23.5। मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 2,35,000। इसका जो डिफरेंस होगा ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। बताइए सेलिंग प्राइस। $1,38,047। इस 1,038,47। 103847। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मालूम करने के लिए 103847 को डिवाइड कर दें 10,000 यूनिट से। 10.3847।
में पॉइंट्स के बाद और डिजिट भी थे, इस वजह से वो डिफरेंट आ रहे हैं। डायरेक्ट कर दिया सबसे हाँ, वही बस समझ रहा हूँ। असल में 9.11 के बाद 5.3 भी है, इस वजह से चेंज आ रहा है। ये इसमें देखें, इसको इसमें प्लस करें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और इसको अब डिवाइड करें, 3,66,153 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट, यस 36.61। इस वक्त जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है इसकी वो $40 है। अगर आप डेटा चेक करें तो आपकी सेल्स रेवेन्यू 4,80,000 रुपये है। आपकी सेल्स रेवेन्यू 4,80,000 रुपये बल्कि 48 लाख रुपीस सेल्स रेवेन्यू है, $48 लाख और 1,20,000 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं। आप $48 लाख को 1,20,000 से डिवाइड करेंगे तो $40 सेलिंग प्राइस आएगी नॉर्मल से। उसने कहा अगर स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उस कंडीशन में मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए कि $4 पर यूनिट जो है वो आप इनकम कमा सके स्पेशल ऑर्डर के तहत। लिहाजा $4 के लिए ये काम रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्या है कि नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि सेल्स रेवेन्यू में से
वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाता है। इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस होती है तो ये अमाउंट निकल आती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से इसको माइनस किया जाता है तो नेट इनकम आती है। आपने उसको रिवर्स किया, सेल रेवेन्यू मालूम करी और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया तो पता चला कि अगर आप मिनिमम 40 के बजाय मिनिमम 36.61 में सेल आउट कर देंगे तो आपको एक यूनिट के ऊपर मुनाफा $4 का होगा, राइट। नेक्स्ट स्टडी निकाले अपने पास मेक और बाय डिसीजन की। मेक और बाय डिसीजन देखिए अपने पास पेज नंबर है इसका मेक और बाय डिसीजन में पेज नंबर 298 देखिए, पेज नंबर 298। Page number 298. When a manufacturer assembles component parts in producing a finished product वो प्रोडक्ट जो आप फाइनली बनाने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है, मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड वेदर टू मेक और बाय दी कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स जिनको मिलाकर फिनिश गुड्स तैयार हो रही है, फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो रही है, वो कंपोनेंट्स बाय किए जाएं या मेक किए जाएं, ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है। द डिसीजन टू बाय पार्ट्स और सर्विसेज इज ऑफन रेफर्ड टू एज आउटसोर्सिंग। इसे आउटसोर्सिंग भी कहा जाता है कि अगर आप मेक करवाएं दूसरी पार्टी से अपने पार्ट्स को तो वो आउटसोर्सिंग कहलाती है। दूसरी को दे दे वो आउटसोर्सिंग कहलाएगी। For example, as I discussed in the feature story, companies such as General Motor Corporation may either make or buy the batteries. मोटर कंपनी है, जनरल मोटर्स कंपनी है, बैटरीज वो खुद बनाए या बाय करे, टायर्स खुद बनाए या बाय करे, इसी तरह से और दूसरी चीजें बनाए कार के लिए या बाय करे। ये डिसीजन लेने के लिए किस तरह से कैलकुलेशन होती है उसके हम एग्जाम्पल देखें। इसी के लास्ट लाइनें पढ़ रहा हूँ इस पैराग्राफ की। द डिसीजन टू मेक और बाय कंपोनेंट्स शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल एनालिसिस। Veron company makes second paragraph motorcycle and scooters. It incurs the following annual cost in producing 25,000 ignition switches for scooters. Direct material, direct labor, variable manufacturing, fixed manufacturing overhead. Total cost given है और total per unit cost $9 की है। सबसे पहले तो इसको अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग मालूम करेंगे। आगे से इस टेबल के बाद इस डेटा जो गिवन डेटा इसके बाद कहा जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट्स ओन स्विचेस, Veron company might purchase the ignition switches from ignition company at price $8 per unit। अगर ये आउटसोर्स करके किसी दूसरी कंपनी से यही इग्निशन परचेज करती है तो उसको $8 में ये यूनिट्स पड़ेंगे, जबकि इसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो $9 की आ रही थी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि आप खुद बना रहे हैं तो $9 की कॉस्ट आ रही है, अगर आप उसको परचेज कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं उसके, उस सूरत में $8 पर यूनिट का खर्चा आ रहा है। What should management do? Third paragraph,
of first glance it appeared the management should purchase the ignition. देखने से क्या लग रहा है कि खरीदारी में $8 का खर्चा आ रहा है जबकि बनाने में $9 का आ रहा है, तो कंपनी को खरीद लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए. However, the review of operation indicates that if the ignition switches were purchased from ignition company, all of the Perron's variable cost, but only 10,000 of its fixed manufacturing cost will be eliminated or avoided. $50,000 of the fixed manufacturing cost will remain if the ignition switches are purchased. The relevant cost for the incremental analysis therefore are as shown below. अब नीचे टेबल बना हुआ है, टेबल को गौर से समझिएगा. एक कॉलम बाय करने का, एक कॉलम मेक करने का. अगर आप वो प्रोडक्ट यानी वो बैटरीज खुद बनाएं या इग्निशन स्विचेस खुद बनाएं तो उसको बनाने में डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आएगा 50,000. अगर बाय करेंगे तो कोई मटेरियल का खर्चा नहीं आएगा, यानी आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बच जाएगी बाय करने से, और इनकम में इजाफा 50,000 का लिखा हुआ है रेड पेन से. डायरेक्ट लेबर का खर्चा मेक करने में आएगा 75,000. अगर आप बाय करेंगे तो कोई डायरेक्ट लेबर का खर्चा नहीं आएगा और आपकी इनकम लेबर के कम होने से इंक्रीज हो जाएगी 75,000. अगर आप मेक करेंगे तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का खर्चा आएगा 40,000. ये सारा वो डेटा है जो गिवन था, 40,000. अगर आप बाय करेंगे तो कोई खर्चा नहीं आएगा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का और इनकम में इजाफा 40,000. लेकिन फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर आप मेक करेंगे तो 60,000 आएगा, और अगर आप बाय करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बाय करने में फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाएगी. नहीं, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती. फिक्स कॉस्ट अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ योर चेंजेस, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल चेंज नहीं होती है. लिहाजा फिक्स कॉस्ट में कमी सिर्फ कितनी होगी, 60,000 से 50,000 फिक्स कॉस्ट हो जाएगी. यानी अगर आप बाय कर रहे हैं तो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट 50,000 रहेगी, और अगर आप मेक करेंगे तो फिक्स कॉस्ट 60,000 होगी. तो इसका मतलब 10,000 रुपये का सिर्फ फर्क पड़ेगा, यानी 10,000 फिक्स कॉस्ट कम होगी. सिर्फ 10,000 फिक्स कॉस्ट कम होगी, जिससे इनकम में देखिए इजाफा 10,000 का शो हो रहा है. अब अगर इग्निशन को परचेज किया जाए तो परचेज करने में $8 का खर्चा आ रहा है. $8 कितने इग्निशन से 25,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया. मेक करने में तो लाजमी बात है, मेक करने में परचेजेस का खर्चा जीरो है, बाय करने में ये खर्चा है. तो बाय वाले कॉलम में हमने लिखा मल्टीप्लाई करके 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कि 2 लाख रुपीस की कॉस्ट आएगी बाय करने में, जिससे इनकम माइनस हो जाएगी बाय करने से, यानी कॉस्ट आने से 2 लाख रुपीस की माइनस में गई. अब आप इनकम वाले कॉलम को देखें कि इनकम में इजाफा कितना था और कमी कितनी थी. इनकम में इजाफा 50,000, 75,000, 40,000, 10,000, सबको सम कर लें. 75, 50, 125, 135 और 175, और कॉस्ट में इजाफा 2 लाख का है. तो इसका मतलब जो डिफरेंस आया वो 25,000 का माइनस में है, जो शो कर रहा है कि इनकम डिक्रीज हो जाएगी कितनी, 25,000 अगर आपने बाय किया. डिसीजन इसका क्या होगा, आया एक्सेप्ट, बाय करें और मेक करें. मेक करना चाहिए. बाय करने में 25,000 रुपए का नुकसान, बाय करने में 25,000 का लॉस हो रहा है. आप मेक वाले कॉलम का टोटल देखें 2,25,000, और बाय वाले कॉलम का टोटल देखें 2,50,000. पहले क्या लग रहा था देखने से कि $1 की कॉस्ट बाय करने में कम है, लेकिन ये हुआ क्या, रीजन ये सामने आई कि आप जब बाय करेंगे तो जो फिक्स कॉस्ट है वो जीरो थोड़ी होगी. फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह मौजूद रहेगी. लिहाजा बाय करने की कॉस्ट अलग है जो कि आ रही है $2 लाख की, और फिक्स कॉस्ट अपनी जगह मौजूद है $50,000 की. तो टोटल जो अमाउंट बनेगा आपका वो 2,50,000 होगा. जबकि अगर आप खुद मेक करेंगे
तो वो फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके अंदर और टोटल कॉस्ट आएगी उसकी 2,25,000। तो यहाँ मेक करना जो है वो फेवरेबल होगा एज कंपेयर टू बाय। यही लास्ट पैराग्राफ में दिस एनालिसिस इंडिकेट द कंपनी वुड incur $25,000 of additional cost by buying the ignition switches rather than make them. Therefore, company should continue to make the ignition switches even though the total manufacturing cost is $1 higher per unit than the purchasing price. उसने कहा कि चाहे उसकी $1 ज़्यादा कॉस्ट आ रही है परचेजिंग प्राइस से, बाई करने से $1 ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन उसको चाहिए कि वो मेक करना कंटिन्यू रखे, प्रोड्यूस करना कंटिन्यू रखे एज आइदर देन टू बाय। ये डिसीजन है उसका। इसी तरह से डिसीजन आपको भी आखिर में मेंशन करना है क्वेश्चंस के, जिस तरह ये वर्डिंग लिखी है। निकाले एक्सरसाइज E7-6 देखें। E7-6 देखिए। E7-6 Jobs Corporation has recently started the manufacturing of the Tree Robo, a 3-wheel robot that can scan a home for fire and gas leakage and then transmit this information to a mobile phone. The cost structure of manufacturing 20,000 Tree Robo is as follows. नीचे डेटा, डायरेक्ट मटेरियल $50 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। पर रिपोर्ट का $50 मटेरियल, $40 लेबर और ओवरहेड $6, एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड $30, total cost 25,20,000. Job is approached by the company which offered to make Try Robo for $115 per unit or 23 lakh. Using the incremental analysis, determine whether the job should accept this offer under each of the following independent assumptions. Number 1 assumption, assume that $450,000 of fixed manufacturing overhead cost can be reduced और अवॉइडेड। यानी टोटल आप देखें फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऊपर 6 लाख रुपीस की आ रही थी। अगर आप बाय करने का डिसीजन एडॉप्ट कर लेते हैं, परचेजिंग ऑप्शन पे जाते हैं, तो उस सूरत में आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। किस हद तक रिड्यूस हो सकती है? 4,05,000 तक रिड्यूस हो जाएगी। Assume that 4,05,000 of fixed manufacturing can be reduced. Reduce की जा सकती है 4,05,000। Assume that दूसरा ऑप्शन है, यानी पहले ऑप्शन सिर्फ ए को लेकर सॉल्व करना है, फिर बाद में बी पर आना है। Assume that none of the fixed overhead can be reduced. However, if the robots are purchased from that company can use the released productive resources to generate additional income of $405,000. दूसरी assumption ये है कि अगर आप, एक assumption ये है कि फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लें, बताएं आंसर आया, हमें बाय करना चाहिए और मेक करना चाहिए। पहले इसी के ऊपर रैकेट करते हैं, हेडिंग डालें अपने पास, मेक और बाय डिसीजन की हेडिंग डालें, मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन। नीचे इंक्रीमेंटल एनालिसिस की हेडिंग डालें, मेक और बाय डिसीजन, इंक्रीमेंटल एनालिसिस की हेडिंग डालें।
20,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 1,10,00,000 की। अगर बाय करेंगे तो ये कॉस्ट सेव हो जाएगी और आपकी इनकम में इजाफा 10,00,000। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ रही है मेक करने में 8,00,000 की। अगर आप बाय करेंगे तो ये कॉस्ट सेव हो जाएगी आपकी और इनकम में इजाफे का सबब बनेगी 8,00,000 से। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट बताइए कितनी है? 1,20,000 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, बाय करने में सेव हो जाएगी और इनकम में इजाफा होगा 1,20,000। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में बताया जाता है कि assume that 4,05,000 of the fixed manufacturing can be reduced, यानी 6 लाख रुपीस की जो कॉस्ट है वो 4,05,000 जो है वो कैन बी रिड्यूस। तो बताइए 6 लाख से 4,05,000 में पहले 6 लाख थी, उसमें कमी हो जाएगी 4,05,000 से। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,95,000, यानी 1,95,000 की कॉस्ट रहेगी, कमी हो रही है 4,05,000 से। यहीं पर अगर आप थोड़े से इसकी वर्डिंग चेंज कर दें और कहा जाए कि अज्यूम करें फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस टू 405, रिड्यूस होगी 4,05,000 तक, तो इसका मतलब होगा यहाँ 4,05,000 आएगा और फिर जो डिफरेंस होगा वो रिड्यूस अमाउंट का होगा। यहाँ वो कह रहे हैं कि 4,05,000 ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का 4,05,000 कैन बी रिड्यूस हो सकता है। तो रिडक्शन जो हो रही है 4,05,000 से हो रही है और कितनी कॉस्ट आएगी अगर बाय करें आप, तो आप डिफरेंस निकाल दें, रिड्यूस होने के बाद कितनी बचेगी कॉस्ट? 1,95,000 की कॉस्ट बचेगी जो कि रिमूव नहीं होगी, अवॉइडेबल नहीं होगी। उसके बाद कोई और कॉस्ट है इसमें चेक करें? नहीं। परचेजिंग प्राइस कितनी आ रही है? अगर परचेज किया जाए तो उसका खर्चा आ रहा है 23 लाख रुपीस। परचेजिंग कॉस्ट आ रही है 23 लाख। अब जरा इधर बोर्ड पर देखें, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। अब आप इसको सम कर लें। मेक करने में टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है? 25,20,000 बन रही है और बाय करने में कितनी बन रही है? 24,95,000 बाय करने में कॉस्ट कम और मेक करने में कॉस्ट ज्यादा आ रही है। यहाँ से देखें इनकम में इजाफा कितना हो रहा था, इसको सम कर लें। लेस करने के बाद 25,000 का इनकम में इजाफा हो रहा है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी शुड बाय दी प्रोडक्ट या शुड बाय दी रिपोर्ट्स। इससे खरीदते जो कंपनी का नाम दिया हुआ है वो मेंशन कर दें। ये असम्पशन नंबर 1 है, इस टेबल को कॉपी कर लें। असम्पशन नंबर 1 एक पार्ट था ये।
वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा मेक और बाय डिसीजन में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये थी कि अगर आप किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करते हैं तो आपको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को छोड़ना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। लिहाजा जो ऑल्टरनेटिव्स आपने छोड़ दिए उनसे हासिल होने वाला बेनिफिट भी अब आपको नहीं मिलेगा। आपने उस बेनिफिट को भी गिव अप कर दिया जो ऑल्टरनेटिव आपने छोड़े। लिहाजा वो बेनिफिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा उस कोर्स ऑफ एक्शन की जो आपने अडॉप्ट किया, हमारे पास मेक और बाय का डिसीजन है सामने। अगर आप मेक कर रहे हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मेक कर रहे हैं तो आप अपनी जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, एसेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर बाय कर रहे हैं तो बाय करने में आपके ये तमाम रिसोर्सेज यानी वो जगह, वो मशीनरी, वो कैपेसिटी अब यूटिलाइज नहीं हो रही, एम्प्टी है, वो आइडल कैपेसिटी है वो। आपके पास एक ऑप्शन यह है कि आप बाय करें ये सामान, आउटसोर्स करें और वो जगह जो आपकी अपनी है उसको आप रेंट पर दे दें, किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में शुरू लगा दें उस जगह को काम पे, उन मशीनों को किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगा दें। ये ऑप्शन मौजूद है आपके पास। अब आप बताइए कि अगर आपसे ये कहा जाए रिक्वायरमेंट नंबर बी, एजम्पशन नंबर बी सवाल की, अगर आपसे ये कहा जाए कि एज्यूम करें none of the fixed overhead can be reduced, however if the remotes are purchased from outsider can use the released productive resources to generate additional income 4,05,000। अगर आप रिमोट्स को आउटसोर्सिंग करके परचेज कर लेते हैं और मेक नहीं करते, उस सूरत में आप अपने रिसोर्सेज को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी जगह को यूटिलाइज करके किसी और पर्पस में इस्तेमाल करके कितना जनरेट कर सकते हैं इनकम, एडिशनल इनकम 4,05,000। बताइए 4,05,000 किस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी? ये मेक करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या बाय करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? बाय करने की। दोबारा सोच लेना, सोचे किस तरह से। बाय करने से क्या आप ये बेनिफिट लॉस कर रहे हैं? मेक करने से ये बेनिफिट लॉस होगा। अगर आप मेक करेंगे, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये आप 4,05,000 रुपए का बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप उसी जगह पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, लिहाजा वो जगह आप किसी और पर्पस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो उस वक्त बेनिफिट मिलेगा जब आप बाय करेंगे। लिहाजा मेक करते वक्त वो बेनिफिट जो आप लॉस कर रहे हैं वो मेक करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो मेक करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिहाजा अगर यहाँ पे ये कहा जाए केस बी में, एक्सेप्शन नंबर बी में सारी चीजें कांस्टेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, फिक्स्ड ओवरहेड नो चेंज। मेक करने में भी 6 लाख थे, बाय करने में भी 6 लाख है, इसका मतलब इररिलेवेंट कॉस्ट हो गई। मेक करने में भी और बाय करने में भी अगर डिफर नहीं हो रही है, इररिलेवेंट कॉस्ट है, उसका इनकम में कोई असर नहीं हो रहा। अलबत्ता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आ रही है, मेक करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कितनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट 4,05,000। बाय करने में ये कॉस्ट नहीं आएगी,
और इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप इनकम में से लेस कर दें। चेक करें अमाउंट यही है 4,05,000 है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चेक कर लें जरा एक दफा बेटा। अब आप बताइए इसका टोटल क्या आएगा, इसका सम करें। यस 25 और 4 29 लाख, यहाँ पे 24 लाख नहीं, ये 6 लाख जमा करें इसमें 29 लाख हो जाएगा ये। और इसका जरा दोबारा से टोटल करें, इन तीनों को सम करके ये माइनस करें, इन तीनों को सम करके ये माइनस करें। हाँ 3,80,000 मेक करने में टोटल कॉस्ट 29,25,000, बाय करने में टोटल कॉस्ट 29 लाख। कितना डिफरेंस आ गया 25,000 का। 25,000 का डिफरेंस आ गया। क्या करना चाहिए, मेक और बाय? मेक करने में टोटल कॉस्ट ज्यादा आ रही है या बाय करने में टोटल कॉस्ट ज्यादा आ रही है? मेक करने में टोटल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, बाय करने में टोटल कॉस्ट कम आ रही है। तो डिसीजन अब क्या हो गया, चेंज हो गया। कंपनी को क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। पहले डिसीजन क्या था, कंपनी को मेक करना चाहिए। अब डिसीजन क्या है, कंपनी को बाय करना चाहिए। क्यों बाय करना चाहिए? क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से अब आपका ये डिसीजन चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर आप बाय करेंगे तो आप अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल करके जो आपकी मेक करने में इस्तेमाल हो रही थी, अब वो कैपेसिटी आपको फायदा देगी, एडिशनल इनकम देगी 4,05,000 का। और मेक बाय करने से आपका खर्चा ये आएगा, तो आपकी इनकम में जो इजाफा होगा वो 25,000 का। कॉपी कीजिए।